Hello everyone, welcome to LUKMAAN IAS. Today we are going to have the Hindu analysis of 18th July 2020. So let us see which are the important articles that have appeared in today's The Hindu newspaper which are relevant for our examination, and let us take inputs from these articles. So for mains examination, let us start with first on editorial page number 6. So university examination guidelines that score low. So the article by Faizan Mustafa, very good writer, and very good inputs can be taken from these articles. So we know that even yesterday also we have discussed about this UGC examination guidelines 2020. So about these guidelines, this article analyzes why there is no need of, let's say, conducting these examinations during this COVID-19 pandemic spread, and how it may result into, let's say, problem in future. So let us try to understand some important points here. Like guidelines state that the performance in the examination is necessary for reflection of competence, performance and credibility that is necessary for global acceptability. So it also communicated that 182 universities have already conducted the examination and 234 planning to hold them in August and September. So the details of these guidelines were covered in let's say yesterday's The Hindu analysis. You can go and refer to that page. However, today we will do analysis of this topic. Okay. So what the analysis in this article says about conducting these final year examinations, graduation examinations. So the article has some important arguments, like our education system continues to be exam centric, and these UGC guidelines fail to take into account the fact that validity of examinations fundamentally depends on their reliability. Okay. At the same time, most of the teachers are not trained in setting good papers, particularly for online open book examination. Open book examination आपको पता है कि जैसे स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है रेफरेंस बुक यूज़ करने के लिए और उसके बाद वो आंसर्स लिख सकते हैं. तो teachers are not trained to, let's say, frame what kind of questions whenever it takes on, let's say, open book examination. So that is again one of the problem. Certification through examination is important but cannot and should not be the sole goal of education. तो ये भी आपको एक स्टेटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन से रिलेटेड. जो हम बोलते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है इट इज़ एग्जामिनेशन सेंट्रिक, and that's why it promotes some aspects regarding education like rote learning or let's say mechanical aspects rather than, let's say, application or let's say practical application of knowledge at the ground level. So that's why it is talking about this statement. Hundreds of our students every year take unfortunate steps. Specifically, we know that because of examination stress, many students opt for suicide because of examination stress, parental stress, because of, let's say, pressure on, let's say, performing good in these examinations. हमें पता है 10th examination, 12th examination, 12th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन जो होता है या फिर ग्रेजुएशन का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस मैनेज नहीं करने आता है. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि ये एग्ज़ाम सेंट्रिक जो सिस्टम होता है उसकी वजह से. देयर इज़ नथिंग लाइक यूजीसी इन यूनाइटेड स्टेट्स. रादर हमें पता होना चाहिए कि यूजीसी क्यों फॉर्म हुआ था. यूजीसी वाज फंडामेंटली मेंट टू बी अ फंड ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन. जैसे उनके नाम पे लिखा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. ठीक है. तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम इट्स नॉमेनक्लेचर, बट यूजीसी एक्ट 1956 does confer on it the power of coordination and determination of standards in universities, as well as therefore it has become the regulator of higher education. अभी मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा सा इनफॉर्मली मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये 1956 में जो एक्ट आया था यूजीसी का, तो एक कहीं ना कहीं अजीब तरीके का एक मेंटालिटी दिखाता है. मेंटालिटी मतलब क्या है कि हम पैसे दे रहे हैं तो सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. ठीक है. ये एक कहीं ना कहीं मेंटालिटी है. रादर एक रेगुलेटर का काम एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो बनाता है उसका एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए. ठीक है. एजुकेशन स्टैंडर्ड इज नॉट हैविंग एनीथिंग रिलेटेड टू, लेट्स से, रेगुलेशन पार्ट or let's say granting money or let's say subsidies to these universities for education purpose.
Okay, so this function should have been separated. From time to time the government wants to change this UGC, reform this UGC, and even the present government wants to, let's say, replace this UGC with new body, that is Higher Education Commission. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अब हायर एजुकेशन सेक्टर इज ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर फंडेड. द प्रेजेंट गवर्नमेंट एट सेंटर वांट्स टू रिप्लेस यूजीसी विद हायर एजुकेशन कमीशन. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं यूजीसी में उसके स्ट्रक्चर है या फिर उसका जो मैंडेट है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. ठीक है, तो उस पर रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है. While the decision has been justified by reference to other universities across the world, rather we need to understand here that these universities are following let's say largely accommodative of students concern. In fact, in foreign universities each teacher has freedom to devise his own evaluation mechanism. इतना फ्रीडम तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल भी टीचर्स के लिए. जो भी इम्पोजिशन होता है वो डायरेक्टली फ्रॉम टॉप होता है. ठीक है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा क्या नहीं. रादर वी नो दैट देर आर सम सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs IIMs जो होते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी दी जाती है टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, एंड दे टेंड टू इवेल्युएट दीज स्टूडेंट्स एंड देयर परफॉर्मेंस ऑन सर्टन क्राइटेरिया दे आर डिवाइज्ड बाय देमसेल्व्स. ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी होने की ज़रूरत है. वैसी ऑटोनॉमी हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़ में है नहीं. ठीक है, तो at the same time, in case the infection does not subside and if universities are forced to conduct the online examination, the UGC would have imposed a patent, we can say patently discriminatory policy on the students. Why? Because of lack of, let's say, access to internet, electricity and study materials, as well as lack of study environment in homes would go unaddressed, and it would only manifest in disparity, या फिर हम बोल सकते हैं inequality जो है एजुकेशन सेक्टर में, तो प्रिवेलेंट इन एजुकेशन सिस्टम, तो दैट इज बाउंड टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई द लास्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन इज सैक्रोसैंट व्हेन आवर करिकुलम फॉलोज द क्यूमुलेटिव रादर देन हायरार्किकल सिस्टम. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव एंड हायरार्किकल सिस्टम मतलब क्या है कि क्यूमुलेटिव सिस्टम मतलब हम फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर जो है उसका हमेशा क्यूमुलेटिव आउटपुट देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स है, सेकंड में कितने हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एवरेज लेते लेते हम फाइनल ईयर तक पहुंचते हैं मार्कशीट्स में. जनरली हम ये फॉलो करते हैं रादर देन हायरार्किकल मतलब क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अलग अलग होंगे और सीक्वेंस में चलेंगे. ठीक है, और फाइनल ईयर का अलग एग्जाम होगा. तो हमारे यहाँ पे पहले ही क्यूमुलेटिव है, तो हम फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को इतना क्यों एम्फेसाइज करते हैं, ऐसा एक आर्गुमेंट यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट होप दैट यूजीसी विल इवेंचुअली टेक द डिसीजन दैट वुड बी इक्विटेबल, फेयर, pragmatic and beneficial, and not one that is risky and exclusionary for set of students. Results should be declared taking into account students performance in earlier semesters and internal evaluation in final semester. तो ये भी आपको पता है कि ये लॉकडाउन जो है वो तो मार्च में आया है, तो उससे पहले ज़रूर इंटरनल एग्जामिनेशन भी हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक इवैल्यूएशन हमारे पास है. ठीक है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में. So that's why they should consider that part also while giving the final year marks without conducting any examination, and they should consider the mental health of students and their anxieties during this कोविड पैंडेमिक. जैसे बाकी लोग जो डरे हुए हैं वैसे ही हमारा यूथ भी है, दे आर एट रिस्क बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19. और एक कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया है कि ठीक है हमें एक ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी करने के लिए या एक बेंचमार्क के लिए ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम ज़रूरी होता है. ठीक है, बट हमें पता है कि ये एग्जामिनेशन में ये जो फाइनल ईयर का मार्क्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं. ठीक है, आपको जॉब लिखना. ठीक है, अब वो जॉब जो है वहाँ पे आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट सबमिट करनी रहती है. ठीक है, तो उसके लिए आपको ये फाइनल ईयर की एग्ज़ाम जो कंडक्ट होती है अप्रैल में और जून तक वो सब कुछ होता है. ठीक है, तो अगर सिर्फ वही एक मोटिव रहता है कि हमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और वो मार्कशीट चाहिए, तो हमें पता है कि राइट नाउ ऑलरेडी देयर इज इकोनॉमिक क्राइसिस एंड वी डू नॉट हैव
let's say that kind of employment opportunities at present, and therefore we should not focus on that aspect at present. Rather, employers and all post graduation and other institutions should be, let's say, focusing on not expecting mark sheet of this final year for this year at least. अभी जो IIT ने डिसीजन लिया है, जैसे कि नया क्राइटेरिया आया है कि 12th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स है वो वहाँ का जो 75% मार्क्स का जो क्राइटेरिया जो था तो वो हटा दिया है उन्होंने. दे विल नॉट कंसिडर दैट 75% क्राइटेरिया, रादर एवरीवन विल बी एलिजिबल नाउ, राइट. सो ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे ये एलिजिबिलिटी जो है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए राइट नाउ. एक हम बोल सकते हैं कि इमरजेंसी टाइम पीरियड है और उसमें हम बोलते हैं कि इमरजेंसी हम एक्सेप्शनल एक्शंस भी लेना बहुत ज़रूरी होता है इमरजेंसी सिचुएशन में. ठीक है. सो यस, सो दिस वाज अबाउट द आर्टिकल. क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वही स्टेटमेंट्स है. सर्टिफिकेशन थ्रू एग्जामिनेशन इज इम्पॉर्टेंट बट कैनॉट एंड शुड नॉट बी द sole goal of education. Analyze the statement with reference to recent UGC examination guidelines and conducting final year degree examinations during COVID-19 pandemic in India. तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है. बहुत ही अच्छे आर्गुमेंट्स दिए गए हैं आर्टिकल में, आप नोट डाउन कीजिए और इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए. ठीक है, आपको एसए में भी इसका यूज हो सकता है. फाइन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ईरान टाइज नीड क्वाइट डिप्लोमेसी. तो बेसिकली आर्टिकल हमने ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इंडिया ईरान रिलेशन, ईरान चाइना रिलेशंस, रीसेंट डेवलपमेंट्स जो है द हिंदू एनालिसिस ऑफ 15 जुलाई, इसमें हमने सारे ये डिटेल्स देख लिए हैं. तो पहला पार्ट जो है पूरे आर्टिकल का, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही. ठीक है, सेम रिपीट हो रही है. रादर वी शुड फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट जो हम वे फॉरवर्ड में ले सकते हैं, जो नया है, इसलिए हमने इसको फॉलो अप बोला है. ठीक है, इंडिया ईरान रिलेशन. तो क्या कर सकते हैं हम? वी नो दैट ईरान रियलाइजेस द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग विद इट्स ओनली पार्टनर इंडिया दैट एंजॉयज ए सैंक्शंस वेवर फ्रॉम यूएस फॉर चाबार. तो जो लैंडलॉक अफगानिस्तान है वहाँ कनेक्टिविटी देता है, एंड यस यूएस वांट्स अफगानिस्तान टू डेवलप. ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए और इंडिया वो कर रहा है इन्वेस्टमेंट. तो यूएस जो है उसको हमारे इन्वेस्टमेंट्स को वो सैंक्शन से वेवर देता है. ईरान एंड इंडिया ऑल्सो शेयर एन एंटीपैथी टू तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान. दैट्स वाई ईरान वुड लाइक टू कीप द डोर ओपन फॉर लेट्स से इंडिया. तो अभी पता है हमें इसका बैकग्राउंड अगर ब्रीफली बताना है सारे इश्यूज का, तो हमें पता है कि ईरान चाइना 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील इज लेट्स से इन फाइनल स्टेजेस ऑफ completion, and at the same time Iran has moved forward to implement its railway project without considering India, or let's say without participation of India, and it said that there are some delays of funding by the Indian government. That's why they have let's say decided to move on by themselves. ये सारा एक डेवलपमेंट है और इसलिए हमें वे फॉरवर्ड में कोई ना चीज़ पता है कि ईरान के लिए भी इंडिया इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट है. नेवरदलेस इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिकॉर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट हैज बीन टेकन अप इन इट्स नेबरहुड. तो पहले भी ऐसा हुआ है जहाँ जहाँ जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, म्यांमार में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिए हैं, बट ड्यू टू delays and cost overruns it only may because of that these countries are let's say moving towards China to expand let's say its footprint in India's neighborhood. ठीक है, तो बाकी कंट्रीज जो है जैसे हमें पता है श्रीलंका जो है वहाँ पे चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, नेपाल में बढ़ रहा है. तो वो उसका रीज़न ये है एक कहीं ना कहीं कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो डिलेज हो रहे हैं और उसकी वजह से कॉस्ट ओवररन्स हो रहे हैं. तो वो एक ध्यान रखना है. द की इज़ टू कंटिन्यू टू रिमेन पॉलिटिकली एंगेज विथ ईरान सो दैट देर इज़ अ बेटर अप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर सेंसिटिविटीज़ एंड कंपल्शंस. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है. लैंग्वेज के लिए हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो लैंग्वेज होता है वो ये डिप्लोमेट्स है, फॉर्मर डिप्लोमेट्स होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से ये इश्यूज़ को डिटेल में जानते हैं.
ठीक है, तो उनके आर्टिकल्स हमेशा पढ़ने चाहिए और यूज करने चाहिए, ठीक है। यस, सो व्हाट काइंड ऑफ question we can expect on that? Yes, on that 15th July 2020 the Hindu analysis we have discussed about the question like recent developments of Iran and China and then its impact on India. Okay, so moving on to next article, at UN meet Modi calls for reformed multilateralism. तो अभी रिसेंटली एक हाई लेवल डायलॉग हुआ है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक, ठीक है। तो ऑन मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19 व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी नीड एट 75th एनिवर्सरी। तो यूनाइटेड नेशंस को 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसके एनिवर्सरी के टाइम पे मतलब किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस बॉडी चाहिए। तो वहाँ पे कुछ रिमार्क्स हमारे प्राइम मिनिस्टर के पता होने चाहिए। आपको एसए में भी यूज़ हो सकता है, आईआर से रिलेटेड, या फिर GS2 में हम जानते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म पे ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ओनली रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म विथ ए रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन एट इट्स सेंटर कैन मीट द एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बात की है कि how India has been fighting COVID-19 pandemic, how it has extended its help to SAARC countries also, it has set up SAARC COVID-19 emergency fund, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हम एक इंटरनेशनल रिलेशंस में एक पॉजिटिव इमेज तैयार करके रखते हैं। इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 आवर ग्रास रूट हेल्थ सिस्टम इज हेल्पिंग टू एंश्योर द बेस्ट रिकवरी रेट्स इन द वर्ल्ड। United Nations was originally born from the furies of Second World War. Today the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. तो ऐसे कुछ यूनिक स्टेटमेंट्स होते हैं, आप एग्जाम में डायरेक्टली उनको कोट कर सकते हो प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, इसलिए ये रिमार्क्स इंपॉर्टेंट है। सो आपको पता होना चाहिए कि इकोसोक पे बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स ऑफ यूएन एस्टेब्लिश्ड इन 1945, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये जो बॉडी है रिस्पॉन्सिबल टू जनरल असेंबली फॉर कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलेटेड वर्क ऑफ 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, फंक्शनल कमीशंस, 5 रीजनल कमीशंस। उनका जो प्रेसिडेंट होता है इट इज़ इलेक्टेड फॉर 1 ईयर टर्म। मेंबर्स है 54 विच आर इलेक्टेड बाय UNGA ईयरली, ठीक है, फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म। हर एक मेंबर का 3 ईयर टर्म होता है, बट वो ओवरलैपिंग होता है, बाकी हर साल री इलेक्शंस होते रहते हैं। दे आर रीजनली लेट्स से डिवाइडेड ऑल दीज मेंबर सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से ज्योग्राफिक रोटेशन। इंडिया इज करेंटली द मेंबर ऑफ काउंसिल, टाइम पीरियड देख सकते हैं 3 साल 2018 से 2020 तक, ठीक है। तो इस साल के आखिरी तक हमारा वो मेंबरशिप है वहाँ पे। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज हेल्ड अंडर ऑस्पिसेस ऑफ इकोसोक एंड इट मीट्स एवरी ईयर इन जुलाई टू रिव्यू द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अभी जुलाई का जो मीटिंग चल रहा है, तो वो इसी का हम बोल सकते हैं, वो रिव्यू करते हैं 2030 हमारा जो एजेंडा है SDGs का। इकोसोक का जो यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग है इट वाज गिफ्टेड फ्रॉम स्वीडन, ठीक है। ये एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, तो बट कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन आके गया है एंड इट वाज रियली बाउंसर फॉर स्टूडेंट्स एट लेट्स से इन दैट ईयर कि इसके बारे में लिखे तो लिखे क्या, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था GS2 में, ठीक है, 2017 में। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शनल कमीशंस अटैच्ड टू इट, ठीक है। फंक्शन में तो स्टूडेंट को आ जाएगा, डिफरेंट फंक्शनल कमीशंस अटैच्ड टू इट ये तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा स्टूडेंट को, प्री में भी इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सेकंड पार्ट स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे, बट फर्स्ट पार्ट जो है वो पता होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है उसमें मेन फंक्शंस ऑफ इकोसोक। तो प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडवांसिंग पॉलिसी इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट कोऑपरेशन फोरम,
फिनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, तो प्रेसिंग ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज जो होते हैं तो उसके ऊपर वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं सारे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर डेलिब्रेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रिकमेंडेशन का काम करते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं ऑर्गन है यूएनजी के, यूनाइटेड नेशंस का, विथ रिगार्डिंग टू इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर, ठीक है। तो ये कुछ मेन फंक्शंस है। एट द सेम टाइम वी नीड टू नो दैट व्हाट आर दीज फंक्शनल कमीशंस। स्टैटिस्टिकल कमीशन है, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, विमेन, नारकोटिक्स, क्राइम प्रिवेंशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे है उनके फंक्शनल कमीशन जिसको बोला गया है, ठीक है। तो वो आंसर में इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल्स अभी नहीं देखते हैं उसमें, जब भी ये न्यूज़ में होगा कोई भी चीज़ हम उसके उस वक्त में हम उसको डिटेल में देखेंगे। एट द सेम टाइम व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अंडर इकोसोक, तो ये सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इनके बारे में हम हमेशा टाइम टू टाइम जैसे न्यूज़ में होता है तो देखते हैं। जैसे लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO, FAO, WHO है, यूनेस्को है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, IMO है, ITU है, WMO, WIPO या फिर WTO भी उसी के अंडर आता है, ठीक है। तो ये सारा इनका फंक्शनिंग जो है और सारा रिपोर्टिंग जो है वो इकोसोक को होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको स्पेशलाइज एजेंसी में किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सो दिस कैन बी द क्वेश्चन फ्रेम ऑन इकोसोक, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक फ्रेम लाइक दिस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। आपको कुछ ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त एक कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक हम बैकग्राउंड में लॉजिक चीज़ नाम की यूज़ करते हैं। लॉजिक में हमें पता है कि इकोसोक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, तो हमें पता है कि ये 1 और 3 जो है उसका आंसर में तो ज़रूर है, ठीक है। तो दूसरी बात ये भी पता होनी चाहिए कि जो पॉलिसी इंटीग्रेशन की बात करते हैं या ह्यूमैनिटेरियन एक्शन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो ऑल ऑफ देम मार्क करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो हम रिस्क लेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसे कुछ एक 4-5 क्वेश्चन होते हैं 100 में से जहाँ पे आपने ये ऐसी रिस्क लेनी चाहिए, ठीक है, और उसका हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट होता है मैक्सिमम ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो, ठीक है। यस, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, नेपाल टू एक्सप्लोर आर्कियोलॉजिकल साइट। तो रिसेंटली जो पीएम है नेपाल के, उन्होंने बोला था कि जो लॉर्ड राम का बर्थ प्लेस है वो अयोध्या नहीं है तो नेपाल में है, ओके। इट इज लोकेटेड इन थोरी विलेज अराउंड बिरगुंज मेजर टाउन इन लेट्स से बॉर्डर एरिया, यूपी और नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे है। तो अभी वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है दे आर होल्डिंग द क्रॉस मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स टू एक्सप्लोर द आर्कियोलॉजिकल साइट इन थोरी। तो थोरी इज नोन टू हैव क्लस्टर ऑफ एंशंट हिंदू रिलीजियस साइट टू दैट ड्रॉज लेट्स से पिलग्रिम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेपाल। तो हम बोल सकते हैं कि इनका कुछ और ही चल रहा है, वर्ल्ड में कुछ और चल रहा है ठीक है। तो ठीक है, इंडिया इज़ नॉट दैट मच कंसर्न। अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ होता है तो हम बोल सकते हैं कि नहीं बाबा कि ये यस, यहाँ पे हमने रिमार्क्स भी देखा है कि ऑन थर्सडे इंडिया इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर ओलीज क्लेम सेड दैट वर्ल्ड वाज अवेयर ऑफ इंडियाज डीप कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टांस होता है वर्ल्ड लेवल पे हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। तो लोकेशन, ठीक है, लोकेशन आप देख सकते हैं कि काठमांडू के साउथ वेस्ट यहाँ पे बॉर्डर है, ये गोरखपुर है और ये बॉर्डर है यहाँ पे यूपी और बिहार का, यहाँ पे पटना है, ठीक है। तो ये रीजन है, हम बोल सकते हैं तराई रीजन भी है यहाँ पे। तो उस साइड में ये लोकेशन है, क्या नाम है इसका, थोरी विलेज, ठीक है। सो अगर गलती से एग्जाम में आता भी है तो आपको वो नाम पता होना चाहिए, मिसलिनियस में आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, झाइडस कैडिला प्लान्स टू कंप्लीट वायरस वैक्सीन ट्रायल्स बाय मार्च
ठीक है। तो मार्च 2021 तक ये बोल रहे हैं कि हम कर लेंगे ट्रायल्स, और टच वुड अगर अच्छा हो जाएगा तो चलो मार्च तक तो वैक्सीन ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो हमने जैसे पहले भी बोला था दैट वी नीड टू नो विच आर द वैक्सीन कैंडिडेट्स बीइंग लेट्स से इन रेस ऑफ ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स, एंड which let's say vaccines are providing the early results, better results, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये कौन सा है, ज़ाइकोव डी वैक्सीन। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स फ्यूचर में जब आएंगे, जब ये ट्रायल्स कंप्लीट होंगे तो हम देख सकते हैं। एट द सेम टाइम कंपनी इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस द ड्रग रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर ड्रग जो है वो ग्लोबली अभी डिमांड में है फॉर लेट्स से ट्रीटिंग सीवियर पेशेंट विथ कोविड-19। ठीक है, तो ये है एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट ड्रग है, बट इसके ऊपर अभी भी स्टडीज चल रही है। द साइंटिफिक कम्युनिटी इज नॉट लेट्स से हैविंग यूनिफाइड वॉइस रिगार्डिंग रेमडेसिविर यूज फॉर कोविड-19। फाइन, सो दिस वाज अबाउट टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर कैप्शंस एंड कोटेशंस। यस, तो पहले ये एजुकेशन से रिलेटेड है। कोई और एक आर्टिकल में ये अभी जो एक पीआईएल डाला था सुप्रीम कोर्ट में, तो सारे स्कूल एजुकेशन का एक यूनिफॉर्म करिकुलम होना चाहिए। तो उसमें वो पीआईएल ने ये बताया था, ये स्टेटमेंट अच्छा लगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हैविंग कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम वुड अचीव द कोड ऑफ कॉमन कल्चर, removal of disparity, depletion of discriminatory values in human relation. It would enhance virtues, improves quality of life, elevate thoughts with advanced constitutional philosophy of equal society. बहुत ही एक क्या बोलते हैं वजनदार स्टेटमेंट लिखा है वो पीआईएल में, बट हाउएवर सुप्रीम कोर्ट डिनाइड this PIL and said that this is the part of policy formulation and this should be function of let's say government, executive and not the judiciary. ठीक है, तो ऐसा बोल के उन्होंने छोड़ दिया है। बाद में हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पीएम का स्टेटमेंट है, मल्टीलैटरल रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म, ये वर्ड आप आंसर में यूज़ कीजिए। ठीक है, एट यूनाइटेड नेशंस। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में आपको स्टेटमेंट में भी आ सकता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में। ठीक है, ओके। So this was about today's The Hindu newspaper. For further information regarding editorial discussion classes, ED classes, wherein in-depth analysis of all these mains related issues, like let's say international relation issues, or we can say polity and governance and social justice related issues, or we can say economics and environment related issues, they are dealt in detail by Ansari Sir and team. So for information regarding this let's say batch or classes or course, you can contact LUKMAAN IAS. Thank you.